Good morning, children. I hope you all are good at your home. So today we are going to study chapter number 7, that is non-finite verb. This is the name of your chapter, non-finite verb. You know, I have told you 3 kinds of verbs. First one, principal verb, like sleep, play. These are like action verbs are principal verbs. Number 2, I have told you linking verbs, who act like a link between they join the verb, the subject and the complement. Okay, these are linking verbs like has, is, was. These are. And third one, that is auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb like do, did, does, has, have been, have been. These are the auxiliary verbs. But auxiliary verbs also have 2 parts. Okay? So we have already learned about the principal verbs and linking verbs. Now we are going to focus on auxiliary verbs, because this is the thing by which we can understand the time of the action and the time of the sentence. So the complete sense can be got by knowing the real use of auxiliary verb. So auxiliary verbs are also divided into 2 parts. So we will see the auxiliary verbs in different forms. How we will use the auxiliary verbs in different sentences. Okay? Ready, class? Yes, ma'am. Okay. So kindly take out page number 58. I think you must have completed your homework which I have given in the last session. Yes, ma'am. Okay, very good. If you have done your homework, it's very good. Okay, class. So first I will introduce you about the non-finite verbs. What are non-finite? Finite means that can be changed, and non-finite means that cannot be changed. What cannot be changed? Let's see. Finite verbs are those can be changed. जैसे आप लोगों का मैथ्स में वेरिएबल सुना है? वेरिएबल्स कौन होते हैं? जो चेंज हो जाते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, होता है ना? वैसे ही ये जो आपका फाइनाइट वर्ब है, ये भी इसकी भी क्या होती है? चेंज होती है, इसमें भी चेंज आता है। अब किस तरीके का चेंज आता है वो भी हम बाद देखेंगे, पहले सिर्फ इसकी मीनिंग जानेंगे, ठीक है? दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट मतलब जिसमें चेंज आ रहा है तो नॉन लगा दिया तो क्या आ जाएगा? कोई चेंज नहीं आता तो क्या हो जाएगा? कांट बी चेंज्ड। अब कहोगे कि मैम ये किस तरीके की चेंज की बात कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 2-3 सेंटेंसेस दूंगी so that you would be able to understand what are non-finite and finite verbs. Actually class, we are just talking about the auxiliary verbs. We are not talking about the linking verbs. We are not talking about the principal verbs. We are just talking about the auxiliary verbs. It means on what extent the auxiliary verbs are divided in English. Okay? First sentence is
the in this sentence you can see that I have used the verb cooks. Okay, next, he cooks the dinner. इसमें आप इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने सेम चीज का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म है। ठीक, अब हमने क्या चेंज किया? क्या चेंज किया हमने इसका जेंडर चेंज किया। चलो अब हम इसका नंबर चेंज कर लेते हैं। अब हमने शी की जगह नंबर चेंज करके प्लूरल लिया, प्लूरल में हमने दे का यूज किया। ठीक है, अब हम लिखेंगे दे। अब दे लिख दिया तो कुक नहीं, कुक्स नहीं होगा, अब केवल कुक होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि प्लूरल नंबर के लिए सिंपल प्रेजेंट में एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। अब दे कुक, यहाँ किसका चेंज किया था हमने? जेंडर चेंज किया था तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने नंबर चेंज किया चेंज आ गया। अब चलो हम टेंस चेंज करके देख लेते हैं। अब हम टेंस चेंज करेंगे। हाँ, शी के लिए अगर हमने टेंस चेंज कर दिया, ये तो प्रेजेंट टेंस है, हम इसको पास्ट बनाते हैं। पास्ट बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस। Who is talking? Somebody has unmuted himself. Who is that? Who is that? I would like to see how the voice was coming. Look class, then she cooked the dinner. This happened when we change the tense of the sentence. Okay, let's change the number again within the same tense. Okay, like I have changed they. Okay, cooked the dinner. Now class, these are the variation that comes in the verbs. Class, listen to me carefully. These are the variation that comes into the verb when we changes the number, when we changes the gender, when we changes the tense, number, tense, and person also. Let me give you one more example. Like I write I cook the dinner. Okay, these are in third person. These all are in the third person. Now I am using the first person. I cook the dinner. Again the changes has come. Like here there is no s. That means that by changing the number, by changing the gender, by changing the tense, these verbs are getting changed. Am I right class? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो बच्चों। जवाब दो तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप लोग सुन ही नहीं रहे। अब देखो आप लोगों ने देखा। वेरी गुड, लिसन टू मी केयरफुली। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक बार अगर आप लोगों ने ये चैप्टर समझ लिया तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी आप लोगों को ये चैप्टर हेल्प करेगा। वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चों, जो कि अगर किसी बच्चे ने समझ लिया तो वो पूरी अपनी लाइफ में कभी ग्रामर में कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता है। जानते हो, वर्ब की मिस्टेक ऐसी मिस्टेक मानी जाती है जो कि पूरे सेंटेंस का अर्थ ही चेंज कर देती है। अगर आप प्रेपोजिशन में मिस्टेक कर दो, कंजंक्शन में मिस्टेक कर दो, तो दे कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड। बट इफ यू डिड एनी मिस्टेक in making the sentence and using the verb, the whole sentence meaning can be changed. अभी आप कह दो कि क्या कहते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, और कह दो मैं स्कूल जाता था। दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा ही डिफरेंस इंग्लिश में भी है।
ईडी ना लगाने का कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है कि कोई खाना अभी बनाता है या बनाता था। आया समझ में आया? जैसे इसका मतलब है बनाता है और इसका मतलब है बनाता था, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए वर्ब का तो आपको जानना बहुत जरूरी है। और जो नॉन फिनाइट पढ़ाने जा रही हूँ ये बड़े बड़े नहीं कर पाते। अगर आप लोगों ने इसे इस छोटी उम्र में समझ लिया तो आप लोग पूरी लाइफ खुश रहोगे कि आप लोगों को अब नॉन फिनाइट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्लास 10 में भी पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11 में भी पढ़ना पड़ेगा, 12 में भी पढ़ना पड़ेगा और आप हमेशा सेम गलतियां करते रहोगे। ठीक है क्लास, आगे चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली हमको क्या बात पता चली कि जब हम किसी भी सेंटेंस का नंबर चेंज करते हैं, उनका टेंस चेंज करते हैं और यहाँ तक कि अगर पर्सन चेंज कर देते हैं तो वर्ब्स में क्या जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। और ये जो वर्ब से चेंजेस होते हैं यही हमें बताते हैं कि हमने कौन से वर्ब, कौन से पर्सन और इन चीज़ों का यूज किया है। अब आप लोग कहोगे कि मैम तो ये सारे जो है हमारे बच्चों ये क्या हो गए हमारे, इन्हें हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब्स। अभी मैंने बताया था ना, फिनाइट वर्ब्स का मतलब कि जो चेंज हो सकते हैं, मतलब ऐसे वर्ब्स जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। डू कर सकते हैं, डिड कर सकते हैं, हैज कर देते हैं, कभी हैव बीन कर देते हैं, कभी हैड बीन कर देते हैं। मतलब हमें चेंज करना ही पड़ता है। कई बार डू को कई बार डू लिखा जाता है, तो कई बार डज लिखा जाता है, कई बार डिड लिखा जाता है, कई बार बी लिखा जाता है, कई बार कुछ लिखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं, some auxiliary verbs are there that cannot be changed. In the case of number, in the case of gender, in the case of person, in the case of tense even, it means all the basis like I have talked about tense, number, person, gender। कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब से बच्चों, चाहे उनका टेंस बदल जाए, चाहे उनका नंबर बदल जाए, चाहे उनका पर्सन बदल दो, चाहे जेंडर बदल दो, लेकिन उनमें कोई भी अंतर नहीं आता है। और जब उनमें कोई अंतर नहीं आता है तो इसका मतलब वो फिक्स है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब। बच्चों फिनाइट वर्ब समझ में आ गया अभी तक? यस मैम। अब हमने नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में क्या बताया कि चाहे हम टेंस चेंज कर दें, चाहे नंबर चेंज कर दें, चाहे पर्सन चेंज कर दें, चाहे जेंडर चेंज कर दें, इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब चलो मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। टेंस की बात करूंगी, सबसे पहले हम टेंस की बात करेंगे। और हमने एक नॉन फिनाइट वर्ब का एग्जांपल ले लिया, हैज टू। अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं टेंस के आधार पर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, लिख दिया शी हैज टू डू द होम वर्क डेली। आया समझ में? ये सेंटेंस हमने यूज किया, शी हैज टू डू द होमवर्क डेली। किया क्या? इसमें किसी तरीके का कोई चेंज आया? नहीं। अब हम इसे पास्ट टेंस बना देते हैं, शी हैड टू डू द होमवर्क डेली। हुआ सेंटेंस। अब हम इसका नंबर चेंज कर देते हैं, नंबर चेंज करेंगे, दे लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया दे। दे हैव टू डू द होम वर्क डेली। ओके, नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, हमने पर्सन चेंज कर दिया। अब पर्सन में चेंज करेंगे, ये कौन सा है, ये तीनों थर्ड पर्सन है। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, हम सेकंड पर्सन यूज करेंगे इस बार। ठीक है, चलो हम यू लिख देते हैं,
You is second person. You have to do the homework daily. ठीक, और अब जेंडर भी चेंज करके देख लेते हैं। ही का जगह हम शी लगा देते हैं। He has to do the homework daily. अब मुझे बताओ ये सारे सेंटेंसेस सही हैं या नहीं? Children, these sentences I have made, are they correct? Yes, ma'am. आप लोगों ने Yes, ma'am. रेपिटेशन किस चीज का देखा? इसका, 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 इसका। क्या ये वर्ब्स जो प्रिंसिपल वर्ब था इसमें कोई चेंज आया? No, ma'am. नहीं आया ना? No. हाँ, पहली चीज तो इसमें चेंज आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके आगे डू लगा है। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना कि किसी भी वर्ब के आगे अगर टू लग गया तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ये तो मैंने बता दिया है। लेकिन ये भी एक नॉन फ्राइड वर्ब का एक पार्ट है, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, इसीलिए मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ। ठीक है, अब ये जो वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब, ये चेंज नहीं हुआ चाहे कैसी भी कंडीशन हमने चेंज कर दी। अब इसका मतलब ये जो वर्ब है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज किया, बच्चों ये ऑक्सिलरी है ना, ये आपका प्रिंसिपल वर्ब और ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ये जितने भी हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब हैं आपके, ये क्या कर रहे हैं? इसको हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये वर्ब में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आने नहीं दे रही है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब में किसी भी तरीके का चेंज आने नहीं देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड। अब आप लोगों को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक आंसर दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब सारे बच्चों को नॉन फिनाइट वर्ब समझ में आ गया। अभी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तब आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। That's why I tell you that always keep practicing these verb quizzes. You know, grammar quiz आप लोग अटेम्प्ट करते रहा करो। इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे ग्रामर क्विज हो रहे हैं, उन क्विज को अटेम्प्ट करते रहा करो। उसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। जो कंफ्यूजन आप लोग आज तक समझते हो वो कंफ्यूजन दूर हो सकती है। इसलिए इंटरनेट आप लोग यूज़ कर रहे हो तो कीप यूजिंग इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। Don't use them in using different videos and rubbish things. Don't use the internet in those things. Okay? Utilize your time if you are sitting at your home and you are not wasting the time to wear the uniform, to wear the dress, to come to the school and go to the school and or whatever it is. Okay. So class, so what I have told you that a finite verb that can change according to the time of action, the number of the people and the person doing action is called a finite verb. And non-finite verbs are which do not change their forms according to the tense or the number of the people doing the action or the pronoun as used as the subject. Class, one more thing I would like to say. Please do in your fair copy you have to do these things. Let me tell you, अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए थे वो सारे एग्जाम्पल्स आपको नोट करने थे। आपने कर लिए सब नोट? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. अगर नोट कर लिए तो उसको अपनी कॉपी पे सबसे पहले लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग नॉन फिनाइट वर्ब और फिनाइट वर्ब की डेफिनेशन नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब आप लोगों को मैं पहला एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दिया हुआ है पहले मैं उसको सॉल्व कराऊंगी, तभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, वरना आप लोग बिल्कुल वो हो जाओगे।
टोटली अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा आप लोग के दिमाग में। ठीक है, पहला है आपका एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पिक आउट द फिनाइट वर्ब्स एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब हम सेंटेंस वाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज ही विल resolve the issue. Class, can you tell me this is finite verb or non-finite verb? Infinite. Sorry, it is finite verb, क्योंकि अगर will को हम shall बना सकते हैं, इसको हम did में कह सकते हैं, has में कह सकते हैं, had में कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये चेंज कर सकता है इसको, इसलिए ये क्या हो गया आपका फिनाइट वर्ब हो गया। सेकंड, मैं लिख दे रही हूँ एफ, समझ जाओगे ना बच्चों, मैं एफ लिख दूंगी तो। Yes, ma'am. नेक्स्ट, द स्विमर। अब तुम लोग कहोगे मैम आपने पता कैसे लगाया है, अब मैं बता रही हूँ मैंने पता कैसे लगाया। पहले वाले सेंटेंस में पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने देखा कि वर्ब कौन सा यूज हुआ है। ये वर्ब विल है, विल का मतलब होता है हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, तो हो जाएगा है भी हो सकता है, हो जाएगा आपका हो जाएगा, हो जाता था भी हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसे होगा तो अगर टेंस में चेंज कर देंगे तो रिजॉल्व बदल जाएगा, कभी ये रिजॉल्व हो जाएगा, कभी ये रिवॉल्व हो जाएगा, कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा, इसमें वर्ब्स में चेंज आता रहेगा। इसलिए हमने ये पहचान लिया कि जो आपका ये वर्ब है ये क्या हो गया, आपका फिनाइट वर्ब है। अगला क्या है, द स्विमर सेट अ न्यू रिकॉर्ड। कुछ लोग इसको रिकॉर्ड पढ़ते हैं बच्चों, ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये रिकॉर्ड होता है, याद रखना। अंग्रेजी में इसको कभी भी रिकॉर्ड मत पढ़ना। वैसे अब आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग इंडियन हो, ठीक है, लेकिन जो इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। ठीक है, थर्ड वन, हाँ, अब पहले सेकंड सेंटेंस में द स्विमर सेट अ न्यू रिकॉर्ड। अब बताओ ये क्या होगा, फिनाइट है कि नॉन फिनाइट है भाई, बताओ। नहीं भाई, ये भी फिनाइट वर्ब है। अभी ये सेट का क्या मतलब है, इसने कर दिया, ये एक नया रिकॉर्ड सेट करता है। क्या इसमें टेंस में चेंज नहीं आ सकता? आ सकता है। अब स्विमर की जगह पे स्विमर्स लगा देंगे तो ये सेट की जगह कुछ और हो जाएगा। आया समझ में? ये सब क्या है, ये यही ट्रिक्स है, आप लोगों को समझनी है। ठीक है, अब अगला करते हैं। The lady was pleased with her work। अब बताओ ये फिनाइट है कि नॉन फिनाइट? सब लोग कह रहे हो कि फिनाइट है? कंफर्म बताओ, एक आंसर बताओ। Who is telling finite? Raise your hand. Who is telling it finite? Raise your hand. I would like to see. Riddhi Misra has said. Sambhavi has said. Shivanvi. Okay, sorry. And Abhinav Jaiswal has said. Utkarshi has said. These are finite verb. Okay. But class, for your kind information, I would like to tell that it is non-finite. अब कहोगे मैम जब हम फिनाइट कहते हैं तो आप नॉन फिनाइट बता दीजिए, फिनाइट बताते हो आप नॉन फिनाइट बता दीजिए। ध्यान से सुनो, अगर हम वॉज को इज कर दें तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हैज बीन कर देंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजेसिव सेंटेंस, सॉरी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है, जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो वो
पास्ट पार्टिसिपल लिया रहता है और पास्ट पार्टिसिपल में कभी कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, नॉन फिनाइट है। यहाँ पे फिनाइट है बच्चों, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। चिंता ना करो, परेशान बिल्कुल मत हो, यही जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, धीमे धीमे सब जान जाओगे आप लोग, डोंट वरी। अगला सेंटेंस है द माइस placed with the लास्ट, प्लीज साइलेंट। played when the cat was away। आप बताओ। Ma'am, finite. Very good, this is finite verb, very good, because it can be changed in the place, it can be changed in the different tenses। हम ये टेंस का हम चेंज कर सकते हैं इसमें आराम से, इसमें कितने भी टेंस में चेंज हो जाए लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसके वर्ब में, इसका जो प्रिंसिपल वर्ब है ये चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। Who told me the answer? Who told me the answer? Ma'am, Tanjika. Very good beta, very good, keep learning। Next question is, the waiters were serving food writing is not good। It is of 5th number, okay। Class, now tell me, this is finite or non-finite verb? Finite verb. Yes, very good। Why it is finite verb? Because if we change was, अगर यहाँ waiters की जगह वेटर हो जाता केवल, तो यहाँ पर was लगा देते और तब ये क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इस लगा देते तो नहीं, ये चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें चेंज आ जाता, इसलिए यहाँ पर हम ing का यूज, ing जिस तरीके से यूज किया गया है, इसका वर्ब का यूज हम चेंज कर देते हैं, तो इसमें पूरी तरीके से चेंज आ जाएगा, इसलिए ये आपका फिनाइट वर्ब में आएगा, ना कि नॉन फिनाइट वर्ब में। अभी और भी सेंटेंसेस हैं। अब आपका 6th सेंटेंस है, 5 मैंने बता दिए हैं, 5 आगे मैं और बता दे रही हूँ। अगला सेंटेंस है आपका, द एन अर्थक्वेक स्ट्रक जापान अ फ्यू वीक्स बैक। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फिनाइट वर्ब है। नेक्स्ट है आपका, द जिमनास्ट वर ट्रेन्ड बाय एन एक्सपर्ट। ये क्या होगा, नॉन फिनाइट। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, द स्पीकर वॉज ऑडिबल। The speaker was audible. It is non-finite. Yes, very good, very good. Yes, very good. Next one, Ruxana enjoys painting. Ruxana enjoys painting. ये क्या होगा, no, it is non-finite। देखो ध्यान से क्या है, Ruxana likes painting। Class, mute yourself, mute। Listen to me, रुखसाना likes painting। अगर यहाँ पर हम like कर दें, पेंटिंग में चेंज आएगा, नहीं आएगा। रुखसाना की जगह पर रुखसाना एंड श्याम कर दें, तो क्या पेंटिंग में चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो पेंटिंग जो है वो फिक्स रहेगा,
अगर पेंटिंग फिक्स है, इसके चेंज होने से इसके चेंज होने पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? नॉन फिनाइट। आया समझ में? अब नेक्स्ट सेंटेंस है स्विमिंग इज अ स्ट्रेनस एक्टिविटी। स्ट्रेनस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसे हम लोग स्ट्रेनस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मेन वर्ब जानते हो क्या है? स्विमिंग। आपका मेन वर्ब क्या है? स्विमिंग, जो कि एक वर्बल नाउन है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब वर्बल नाउन प्रोग्राम में ये कौन सी नई चीज आपने बता दी? अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में आप लोग। थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाओगे तो समझ जाओगे। ये देखो, ये है आपका वर्ब स्विम। अब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? स्विमिंग। मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को फॉर्मिंग वर्ब बताया था। एडजेक्टिव्स थे, उनसे हमने बताया था आपको वर्ब बनाना। ऐसे ही नाउन से हमने बताया था आपको वर्ब बनाना। उसी तरीके से वर्ब से नाउन बनाना भी होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना कि लार्ज एक क्या है? एडजेक्टिव है। इससे हमने कौन सी वर्ब बनाई थी? एनलार्ज बनाई थी, याद आया सबको? उसी तरीके से हम वर्ब से उसका नाउन बनाते हैं। स्विम करना मतलब होता है तैरना, लेकिन स्विमिंग का मतलब तैराकी। अंतर समझ में आया? तैरना और तैराकी, डिफरेंस समझ में आया सबको? तैरना तो वर्ब हो गया और तैराकी क्या हो जाएगा? एक हुनर हो जाएगा। और हुनर क्या हो जाएगा? स्विमिंग। तो हुनर जो है वो आपका नाउन की तरह वर्क करेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्बल नाउन। और ऐसे वर्बल नाउन को हमारे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? जीरंड। क्या बोलते हैं बच्चों? जीरंड। याद कर लो, ऑल द वर्बल नाउन्स आर कॉल्ड जीरंड। अब इन्हीं चीजों के बारे में हमें इन चैप्टर्स में पढ़ना है। क्लास आया समझ में सबको? Yes, ma'am. वर्बल नाउन का क्या कॉन्सेप्ट है? वर्बल नाउन के बारे में मैंने भी बताया। क्या कॉन्सेप्ट बताया इसके बारे में? मैम जो वर्ब होते हैं ये एज अ नाउन यूज होते हैं सेंटेंस में। हाँ नहीं, एज अ नाउन नहीं यूज होते हैं। इनको हम नाउन की तरह बना देते हैं। क्या करते हैं हम? वी फॉर्म नाउन विद द हेल्प ऑफ दी verbs. They also act like a noun. That's why they are called verbal noun. Understood? And in grammatical language they are called gerunds. आया समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। Kinds of non-finite verb. Class, only 5 minutes are left, so I would like to ask you some questions. Okay? There is one homework for you all. You have to write down. Class, listen to me. You have to write down gerunds finding out from internet. Which we use in daily life. This is your homework class. अब कहोगे मैम ये होमवर्क करना कैसे है? फिर बता रही हूँ। एक जेरेंड का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। क्या दिया था? ऐसे ही आपके बहुत सारे जेरेंड हैं। दूसरा बता रही हूँ, टीचिंग। ठीक है, एक और बता रही हूँ आपको। ये आपके डेली यूज के शब्द हैं जो आप लोग रोज यूज करते हो और आप लोगों को पता भी नहीं है
हैं, ये सभी क्या है, जेरंड्स हैं बच्चों। ये सभी वर्ब से बने हैं। देखो स्विम लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, क्या हो गया, वर्ब क्या बन गया, नाउन बन गया। टीच है, टीच एक वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, नाउन बन गया। लर्न एक वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, नाउन बन गया। तो ये सारे जो नाउन है ये सभी क्या है, जेरंड है, इन्हें हम वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल आप कोई बताओ जो आप लोग रोज डेली लाइफ में यूज करते हो जिस वर्ड को। सिटिंग, वेरी गुड, सिटिंग, वेरी गुड। और running and sleeping. स्लीपिंग, वेरी गुड, स्लीपिंग। Walking. नो, हाँ वॉकिंग है, वेरी गुड। वॉकिंग को हम रनिंग। हाँ आप ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बात बहुत जरूरी बतानी है, ध्यान से सुनो। सारे जेरंड्स में आई, अरे भाई सुनो, अभी गलती कर दोगे आप लोग, ध्यान से सुनो। सारे वर्ब्स में आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन सारे वर्ब्स को आईएनजी लगा के उन्हें नाउन में नहीं बनाया जा सकता। फिर से सुनो मेरी बात। स्विम का मतलब होता है तैरना, आईएनजी लगा दिया तो तैराकी हो गया। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और टीचिंग करें तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई। ठीक है, सीखना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या नाम है, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, और लर्निंग का मतलब सीखना, लेकिन क्या हो गया, लर्निंग का मतलब हो गया सीख। सिट का मतलब होता है बैठना, लेकिन सिटिंग का मतलब क्या होता है, बैठक। स्लीप का मतलब होता है सोना, लेकिन स्लीपिंग का मतलब होता है नींद। वॉक का मतलब होता है चलना, लेकिन आईएनजी लगा जिसका मतलब क्या हो गया, वॉकिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे इतना नहीं आती हिंदी, आप लोग समझ सकते हो वॉकिंग का क्या मतलब है। टहलना, कुछ होगा ना इस तरीके का, कुछ आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, इस तरीके के वर्ब्स, सारे वर्ब्स में आईएनजी लगाने पर कोई जेरंड नहीं बनते हैं, इस बात को अपने दिमाग में भर लो। और दूसरी चीज, जेरंड्स वही होंगे जो नाउन की तरह काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे वर्ब्स में आपने आईएनजी लगा दिया तो वो जेरंड बन गया, सब में ऐसा नहीं होगा चिल्ड्रन। अंडरस्टूड क्लास? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू एवरीवन। Excuse me, ma'am.